We have completed chapter 1. Yes, chapter 1, the man who robbed the bank. Now, today we will do question and answer of chapter 1. The first question is, why was Nathu the sweeper boy annoyed? Why the sweeper boy Nathu was annoyed? Because he had not paid for 2 months from St. Govindram's बैंक, क्योंकि स्वीपर बाय नाथू जो है उसे 2 मंथ से पे नहीं किया गया था फ्रॉम द बैंक, सो ही बिकेम annoyed. Now the second question is, how did news about the bank change from Mrs. Prakash telling to Mrs. Bhushan? According to para number 11, para number 12 and para number 15. Now फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज कि जो न्यूज़ थी अबाउट द बैंक के बारे में जो न्यूज़ थी जो मिसेस प्रकाश ने मिसेस भूषण को प्रेयर की थी वो किस तरह से बिल्कुल चेंज हो जाती है. नाउ द आंसर इज, व्हेन मिसेस प्रकाश मेट हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग अंडर द tamarind tree and she became excited to share the news with her friends about the bank. She narrated that St. Govindram's bank doesn't pay its employees as she had received the news from the sweeper boy who hadn't received his pay for 2 months. Mrs. Bhushan, who was shocked and went to Jugal Kishore's shop and told her husband the same, but she added a thing that the employees had not paid for 3 months and the bank is going to bankrupt. This is how the news about the bank changed from Mrs. Prakash telling to Mrs. Bhushan. Is it clear? जैसा कि मिसेस प्रकाश ने मिसेस भूषण को कहा था कि वो 2 मंथ्स के लिए एम्प्लॉयज को पे नहीं किया गया है, बट मिसेस भूषण टोल्ड हर हस्बैंड, लेकिन मिसेस भूषण ने अपने हस्बैंड को कहा कि उन्होंने 3 मंथ से पे नहीं किया गया है और वो बैंक जो है वो बैंकक्रप्ट होने जा रहा है. तो यहाँ पर आकर न्यूज़ जो मिसेस प्रकाश ने दी थी वो यहाँ पर क्वाइट चेंज हो जाती है. हाउ डिड द बार्बर एंड हिज कस्टमर रिएक्ट टू द न्यूज़ अबाउट द बैंक? बार्बर और उसके जो कस्टमर हैं वो बैंक के लिए किस तरह से रिएक्ट करते हैं? What words in para 17 tell you that the customer was more worried about his money than his injury? According to para number 17 हमें ये क्लियर करना है कि कस्टमर जो है वो अपनी इंजरी से ज़्यादा अपनी मनी के लिए वरीड थे. Now the answer is, Faiz Hussain the barber was so shocked to hear the news regarding the bank that his hands shook. Whose? Faiz Hussain. Faiz Hussain's hand shook and nicked his customer right ear. The customer, an elderly gentleman, yelped with pain and distress. Pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. This shows that the customer is more worried about the money than his injury. Is it clear? Next, St. Govindram was known in town as a man of wealth whose haphazard business dealing has often brought him to the verge of ruin. Answer this question about him. Statement is, सेठ गोविंदराम जो हैं वो इस टाउन के एक वेल्थी पर्सन के रूप में जाने जाते हैं, बट उनका जो केयरलेस बिजनेस डीलिंग है
उसके कारण उनका जो बैंक है वो किस पर आ गया है, एट द वर्ज ऑफ ruin, बर्बादी पर आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर ए इज व्हाट मेड द टाउन्स पीपल थिंक दैट द state had run away because of bank's collapse। कौन सी चीज ऐसी है जिससे टाउन के पीपल ये सोचते हैं कि जो सेठ गोविंद राम है वो इस शहर से चले गए हैं और बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया है। द आंसर इज द elderly customer at the barber shop went to a general store which had a telephone and dialed Saint Govind Ram। वो कस्टमर जो कि बार्बर की शॉप था वो जनरल स्टोर पर गया और उसने सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ जो है घर पर नहीं थे। ही वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, वो कश्मीर में हॉलीडे पर थे। द एल्डरली मैन स्पेक्यूलेटेड दैट सेठ हैड लेफ्ट द टाउन। जो एल्डरली पर्सन था उसने ये स्पेक्यूलेट कर लिया, ये मान लिया कि सेठ जो है उन्होंने टाउन को छोड़ दिया है। When this information spread in the town, everyone else was convinced that the Sheikh had run away। अब इस न्यूज़ के फैलने के बाद में हर एक व्यक्ति ने ये मान लिया कि जो सेठ गोविंद राम है वो क्या है, भाग गए हैं, रन अवे। नाउ द क्वेश्चन बी इज व्हाट वर द एब्सर्ड रूमर्स दैट वर spreading about Saint Govind Ram according to पैरा नंबर 21। आपको बताना है कौन सा र्यूमर जो है वो पूरे टाउन में फैलता है कि सेठ गोविंद राम जो है उनके अबाउट सेठ गोविंद राम के लिए फैल जाता है। नाउ among the absurd rumor that was spreading about the saint, one was that he had fled the state। Others insisted that they had fled the country, and some believed that he was hiding somewhere close by or possibly within the town। लेकिन दूसरे ये मान लेते हैं कि जो सेठ गोविंद राम है उन्होंने अपने आप को कहीं छुपा लिया है, अपने आसपास ही छुपा लिया है या टाउन में किसी अच्छी नियरेस्ट जगह पर अपने आप को छुपा लिया है, सेफ गार्ड कर दिया है, अंडरग्राउंड कर दिया है। नाउ द क्वेश्चन सी इज डू यू थिंक द सेफ रेपुटेशन मेड द रूमर्स इजियर टू बिलीव। क्या आप मानते हैं जो सेफ की रेपुटेशन थी वो इस रूमर को विश्वास करने के लिए और ज़्यादा इजी कर देती है। वाई, क्यों, रीजन देना है। यस, द सेफ रेपुटेशन मेड द रूमर्स इजियर टू बिलीव। सेठ की जो रेपुटेशन थी उसने इस बिलीफ को और भी ज़्यादा इजी कर दिया था। दिस इज बिकॉज द सेठ वॉज नोन फॉर हिज प्लेजर लविंग एटीट्यूड। क्यों, सेठ जो है वो अपने प्लेजर लविंग एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। एंड केयरलेस बिजनेस डीलिंग, और उनका जो बिजनेस डीलिंग का वे है दैट इज वेरी केयरलेस, वो केयरलेस है। तो सेठ was known for his careless business dealing and pleasure-loving attitude। Today's work you have to write down the question and answer first, second, third, and fourth in your notebook। Thank you।